یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا، اور نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، ہر قول مصطفیٰ کا نبھا رہے حسین ہے۔ کم ہے کر دیجئے اس کو، وہ بھی کچھ گڑبڑ کر رہا ہے کہ ہر قول مصطفیٰ کا نبھا رہا ہے حسین، نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، ہر قول مصطفیٰ کا نبھا رہے ہیں حسین، ہر قول مصطفیٰ کا نبھا رہے ہیں حسین۔ تھوڑا سا اور اس کو ٹھیک کیجئے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، یہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے، یہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے، اور کتنا سخی در میرے آقا حسین کا ہے، کتنا سخی در میرے آقا حسین کا ہے، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی رکھے گا لاج محشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج محشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج محشر میں نانا حسین کا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ کہ فنا اور بقا کیا ہے، یہی تو کربلا میں ہے کہ امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی کربلا میں یہ یزیدیوں کو بتا دیا، اے یزیدیوں تم جسے مٹانا چاہتے تھے وہ کٹ کر کے بھی آباد ہو گیا ہے، اور تم بچ کر کے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، نیزے پر امام حسین کا سر چڑھا ہے، اور وہیں سے میرے آقا حسین اپنے غلاموں کو یہ ذہن دیتے ہیں، اے میرے غلاموں تیرے امام کا سر کٹ گیا ہے، اس سے گھبرانا نہیں، تیرے امام کا سر کٹنے کے بعد بھی سر بلندی پر ہے، اور نوکے نیزہ پر میرے امام کا سر ہے، وہیں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اور میرے آقا حسین تصورات کی دنیا میں کہتے ہیں، اے میرے غلاموں دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کی لشکر میں تیرے امام کا سر بلند ہے، تیرے امام کا سر اونچا ہے، یعنی جو سر کٹا نہیں ہے وہ نیچے ہے، اور جو کٹ گیا ہے وہی بلندی پر ہے، وہی بلند ہے۔ شاعر کہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن پھر یزیدی سوچ رہا تھا کہ کٹا کیا ہے، پھر یزیدی سوچ رہا تھا کہ کٹا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن پھر یزیدی سوچ رہا تھا کہ کٹا کیا ہے، ادھر نہ تیر و نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ذہن میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک ذہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ممکن نہیں کہ کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بیری ہے سخاوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بیری ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا
हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत हाफिज व कारी साबिर रजा साहब फरीदी है, वहाँ आएंगे और वो आएंगे और इमाम हुसैन की शान में मनक़बत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। और शादी के मौके पर भी कुछ अशार पढ़ेंगे, एक दो अशार और सुनिए, तब उनको मैं यहाँ आने का मौका दूंगा कि जब मौत है, कि जहाँ मौत है वहाँ जिंदगी हुसैन से है, जहाँ मौत है वहाँ जिंदगी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है। यजीदियों से हमारी कभी बनती नहीं, और बने भी कैसे कि जब दोस्ती हुसैन से है, बने भी कैसे कि जब दोस्ती हुसैन से है। अगर इमाम हुसैन से आपकी भी दोस्ती है तो एक बार कह दीजिए, या हुसैन जश्न शहीद करबला, कि जहां मौत है वहां जिंदगी हुसैन से है, जहां मौत है, जहां है मौत वहां जिंदगी हुसैन से है। शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है, और यजीदियों से हमारी कभी बनी ही नहीं, बने भी कैसे कि जब दोस्ती हुसैन से है। और करबला को करबला के शहनशाह पर नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। करबला को करबला के शहनशाह पर नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और मुस्तफा खुदा के महबूब है, कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा खुदा के महबूब है, खुदा मुस्तफा के बगैर नहीं मिलता। मुस्तफा खुदा के महबूब है, खुदा मुस्तफा के बगैर नहीं मिलता। और हुसैन मुस्तफा के महबूब है, हुसैन मुस्तफा के महबूब है, मुस्तफा हुसैन के बगैर नहीं मिलता। मुस्तफा हुसैन के बगैर नहीं मिलता, मुस्तफा हुसैन के बगैर नहीं मिलता। और आगे सुनिए कि मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के। यजीद सोच रहा था हुसैन को मार देंगे, पूरी दुनिया की सल्तनत मेरे हाथ में, हुसैन को मिटा देंगे, हुकूमत मेरी होगी। यजीद का ये ख्याल जरूर था, लेकिन ये नापाक ख्याल था। ये हुसैन को मार के हुकूमत करेंगे, ये गलत ख्याल था। उसे पता नहीं था कि जिससे वो लड़ने जा रहा है, कुछ देर के बाद कुरान कहेगा वो जिंदा हो गया है, कुछ देर के बाद ये कुरान कहेगा यजीदियों तूने जिसको मारा है, अब कुरान कहता है कि ये जिंदा है। और यजीदी जिंदा रह करके भी कुरान ने उसको मुर्दा कह दिया है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, एक अली असगर 6 माह का है, 6 माह का अली असगर है। हजरत इमाम हुसैन से कहा गया, ए हुसैन ये 6 माह का बच्चा प्यासा है, अरे यजीदियों को जंग है तो आपसे है, यजीदियों को लड़ाई है तो आपसे है, यजीदियों को दुश्मनी है तो आपसे है। ये 6 माह का बच्चा अली असगर किसी का क्या बिगाड़ा है? जाओ इन अली असगर के लिए एक कतरा पानी तो मांग कर देख लो, हो सकता है यजीदियों के दिल में रहम आ जाए। लेकिन यजीदियों के दिल पर रहम का आता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली असगर को अपने गोद में लिया है, लेके फुरात के करीब पहुंच रहे हैं, मैदान में आए हैं, ऐलान करते हैं, ए यजीदियों तुमको दुश्मनी है तो हमसे है, लड़ाई है तो हमसे है, परेशानी है तो हमसे है। ये 6 माह का बच्चा अली असगर तेरा क्या बिगाड़ा है? इसका क्या कसूर है? कम से कम एक कतरा पानी तो इनके हल्के में टपका दो, ये भी 3 दिन का भूखा प्यासा है। यजीदियों से जवाब आता है, ए हुसैन तू बच्चे का बहाना बनाकर पानी पीना चाहता है, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, सब्र करो अभी मैं क्या देता हूँ, कभी तेरा बच्चा तुमसे पानी नहीं मांगेगा। इतने में हुरमला ने एक तीर ऐसा चलाया है कि अली असगर के हुक्म में आके तीर गिर गया है। जहां पे पानी पिलाना था वहां पे जाके तीर गिर गया है। जालिमों ने ना पानी पिलाया, बल्कि एक तीर
तीर ऐसा चलाया, नन्हे असगर प्यासा बिलकता, चल दिया खुद को करबला से, चल दिया खुद को करबला से। इमाम हुसैन ने देखा है कि जालिमों ने पानी तो ना दिया, लेकिन अली असगर को ऐसा तीर दिया है कि अब ये कयामत तक पानी नहीं मांगेगा। हजरत इमाम हुसैन उस बच्चे को खेमे में लाके देते हैं। उम्मे रबाब समझ रही थी पानी मिल गया है, शहर बानो समझ रही थी पानी मिल गया है, हजरत ज़ैनब समझ रही थी पानी मिल गया है, क्योंकि बच्चा खामोशी के साथ आ रहा है। लेकिन जो ही करीब आया, क्या देखते हैं कि जालिमों ने तीर चला दिया है, जालिमों ने तीर मारा है। हजरत इमाम हुसैन ने बच्चे को खेमे वालों को दिया है और उनका खून अपने हाथ में ले लेते हैं, जमीन पर डालना चाहते हैं। जमीन से आवाज आती है, खबरदार मेरे आका, कयामत तक एक दाना उगने नहीं दूंगी, इसलिए मुझ पर अली असगर का खून ना डाला जाए। हजरत इमाम हुसैन ने उस खून को जो है आसमान के तरफ फेंकना चाहते हैं। आवाज आती है, खबरदार मेरे आका, कयामत तक अब्रे बारह जमीन वालों पर गिरने नहीं दूंगा। अब हजरत इमाम हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पे मल लेते हैं और अर्ज करते हैं, मेरे मालिक देख, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शहीदाने मोहब्बत का गुस्ल उनके खून से होता है। मेरे महबूब मुझे देख, मैं अपने बच्चों के खून से अपना गुस्ल करता हूँ। मौला, इस खून को राय गाय होने मत देना, कल शाफ़े महशर के सामने इसी खून के साथ हुसैन आएगा, फिर वह यजीदियों से हिसाब लिया जाएगा। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का, और पड़ता नहीं है दर बदर, रहता नहीं चैन से, पड़ता है दर बदर, रहता नहीं चैन से। आज भी शर्मिंदा है पानी हुसैन से, आज भी शर्मिंदा है पानी हुसैन से। और हुसैन के जिक्र से जो भी जलता है मोहसिन, इंसानियत की जबान में उसको यजीद कहते हैं, इंसानियत की जबान में उसको यजीद कहते हैं। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक पल की थी हुकूमत बस यजीद, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का है। ऐ करबला की खाक, उस मंजर उस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ में लाशे जिगर, लाशे जिगर गोशे बतूल। ऐ करबला की खाक, उस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ में लाशे जिगर गोशे बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, शराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, शराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और आगे सुनिए कि यजीद तेरा तख्त व ताज दो घड़ी की थी, यजीद तेरा तख्त व ताज दो घड़ी का था, आज भी है दिलों पर हुकूमत हुसैन की। और एक बहुत कीमती शेर सुनिए, कलमा तो पढ़ता था मोहम्मद का, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तो पढ़ता था मोहम्मद का, मगर सब बेईमान निकले। कलमा तो पढ़ता था, कलमा तो पढ़ता था रसूल पाक का, मगर सब बेईमान निकले। अफसोस तो ये है कि हुसैन का कातिल मुसलमान निकले। अफसोस तो ये है हुसैन का कातिल मुसलमान निकले। इसको थोड़ा इधर घुमा दीजिए, आप आगे हजरत खाली अच्छा बस हो गया ठीक है, थोड़ा सा और इसको पीछे तरफ कही दीजिए कि कलमा तो पढ़ता था रसूल पाक का, कलमा तो पढ़ता था रसूल पाक का, सब बेईमान निकले। अफसोस तो ये है कि हुसैन के कातिल भी मुसलमान निकले। अफसोस तो ये है कि हुसैन के कातिल भी मुसलमान निकले। और कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का। वहां पर शुक्र अदा किया जहां पर सब्र करना मुश्किल था और झुकाना चाहा था। जिस सर को शाम वालों ने शिकस्त देखिए, उसी सर को खुद उठा के चले। और पूछो यजीद से कि तेरा तख्त व ताज कहाँ है,
पूछो यजीद से तेरा ताज कहाँ है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन इब्न अली, जिंदा रहेगा यजीद, लानत के सिवा तेरा जिक्र क्या है, यजीद लानत के सिवा तेरा जिक्र क्या है। और बशर तो क्या फरिश्ते से, बशर तो क्या फरिश्तों से ना ऐसी बंदगी होगी। हुसैन इब्न अली आएंगे दुनिया में, देखती होगी हमारे खून के बदले में उम्मत बख्श दे या रब। खुदा से महशर में ये इल्तिजा शब्बीर की होगी, खुदा से महशर में ये इल्तिजा शब्बीर की होगी। और आगे एक दो अशार और सुनिए। इश्क नबी से चल रूह को जगमगा के देख, इश्क नबी से रूह को चल जगमगा के देख, लब पर दुरूद पाक का नगमा सजा कर देख, जलवा रसूल पाक का देखेगा हर घड़ी। पहले तू अपने दिल को मदीना बना कर देख, पहले तू अपने दिल को मदीना बना कर देख। और नामे हुसैन जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वह मुसलमान नहीं है। नामे हुसैन जिसको पहचान नहीं है, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं है। मुझसे पूछते हो शाने हुसैन लोगों, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है। और करबला में औलाद कटी इमाम हुसैन की, करबला में औलाद कटी इमाम हुसैन की, मगर नस्ल मिट गई है यजीद की, मगर नस्ल मिट गई है यजीद की। और हुसैन काबे से जाते हैं करबला के लिए, खुदा के घर से जाते हैं मगर खुदा के लिए। हुसैन काबे से जाते हैं करबला के लिए, मगर हुसैन काबे से जाते हैं, हुसैन काबे से जाते हैं करबला के लिए, खुदा के घर से जाते हैं मगर खुदा के लिए। और सलाम या मौला हुसैन, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की। लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया, लफ्ज यजीद गाली से बदतर बना दिया। और एक करबला नहीं फसाना हुसैन का, हर एक जिंदा दिल है ठिकाना हुसैन का। वो शाह है, बादशाह है, शहनशाह है दीन का, होता नहीं है खत्म जमाना हुसैन का, होता नहीं है खत्म जमाना हुसैन का। मेरे आका हुसैन का जमाना कभी खत्म नहीं होगा और ना उनका चर्चा कभी कम होगा, इसलिए कि ये आका हुसैन का देन है कि आप और हम यहाँ पर मुसलमान हैं। अगर इमाम हुसैन करबला ना जाते तो पता नहीं आप क्या होते, हम क्या होते। ये हुसैन का करम है कि आका हुसैन ने हम सबको इस्लाम बचाकर, सुन्नत बचाकर और दीन बचा करके दे दिया। ये हुसैन का करम है। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। अब बड़ी तेजी के साथ मैं साबिर रजा साहब को आपके सामने करने जा रहा हूँ। एक दो अशार और सुनिए कि कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का, कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का। खंजर तले भी सर ना झुका हुसैन का। कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का, खंजर तले भी सर ना झुका हुसैन का। मिट्टी में मिट गए नस्ल यजीद, करबला की खाक में कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का। ये जमाना मेरे आका हुसैन का है। और शायर ने कहा है कि 1000 सजदे जमीन हरम पे हो, लेकिन 1000 सजदे जमीन हरम पे हो, लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने। 1000 सजदे जमीन हरम पे हो, लेकिन 1000 सजदे जमीन हरम पे हो, लेकिन हासिले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे
मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और आका हुसैन की शान में एक मनकबत हजरत साबिर रजा साहब से आप लोग समाअत करेंगे, उसके लिए मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप आइए और सामईन को मनकबत इमाम हुसैन सुनाइए और सुनने का मौका दीजिए। आका हुसैन की शान में, इमाम हुसैन की शान में एक मनकबत सुनाइए कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उनके आने से कबल एक बार कहिए या हुसैन, या हसनो हुसैन, या हसनो हुसैन, या शहीद करबला। आइए हजरत।